Good morning students. So today we will solve exercise 1.3 of NCERT. Okay. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसेट के बारे में, राइट। तो जैसे कोई सेट हमारे पास A है which has 3 element A, B and C. So the subset of A will be first of all 5, then A, then B, then C, then AB, BC, CA and AB and C. These are subset of A. Then what will be the number of subset? Number of subset will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसे कैसे लिख सकते हो? फॉर्मूला बनाना हो तो 2 to the power 3. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो आपके सेट्स में 2 to the power n, where n represents number of elements in a set. तो 2 to the power n क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट, राइट। इसका सिंबल क्या होता है रिप्रेजेंट करने का? CA. Suppose this A element, this is subset of set A, or you can consider this also as a set like B is C and A. So here B is subset of A, right? So on the basis of this, we will solve exercise 1.3. Let's see question number 1. Question number 1 is fill in the blanks. Fill in the blanks properly. Using subset and not subset. First 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Second one is A, B, C, D, C, D, Y such that Y is a total of class 11 of the school Y such that Y is a student of the school. Fourth one is Y such that Y is a circle in the plane. Is a circle in the plane Y such that Y is a circle in the same plane with radius 2 unit. Its radius 2 unit, right? Fifth one is Y such that Y is an equilateral triangle
is an equilateral triangle in a plane y such that y is a rectangle in the same plane. Sixth question is y such that y is an equilateral triangle in a plane y such that y is a triangle in the plane. Last one is y such that y is an odd natural number x such that x is an integer. Right? तो सी ओके, ये ऐसे नहीं हो सकता, लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है, ये बी सी डी होना चाहिए। वाई बिकॉज डी भी दो बार नहीं आ सकता सेट में। सबसे पहले तो सेट का डेफिनेशन ही गलत हो गया वहाँ पे। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं। 3 4 5 क्या इसका सबसेट है? सी है, 3 is here, yes, 3 is here, 4 and 5, so this is subset of this. A B C में A नहीं है और B है, C है, ये not a subset of this set. Y is a Y of pupil, Y such that Y is a pupil of class 11 of the school. एक स्कूल में 11th क्लास के जो बच्चे होंगे, Y such that Y is a student of the school, yes subset होगा। क्यों? 11th क्लास के बच्चे भी तो उसी स्कूल में आते होंगे, है ना। Y such that Y is a circle in the plane, Y such that Y क्या है? एक सर्कल है in a plane, suppose circle in a plane. Y such that Y is a circle in the same plane with radius 2 unit. नहीं होना चाहिए। अब इसका आपको रेडियस क्या पता है कितना है? देखो ये 4 यूनिट भी ले सकते हो आप, अगर 2 यूनिट लोगे तो ऐसा बनेगा, अगर आपने 1 यूनिट लिया तो ऐसा बनेगा, है ना। तो नहीं हो सकता। अगर उससे छोटा ले रहे हो, अगर ये वाला जो सर्कल है ये 1 यूनिट का है, देन 2 यूनिट रेडियस का उसका सबसेट होगा। लेकिन अगर वो 4 यूनिट का है जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है कितने यूनिट्स का उसका रेडियस है, तो ये नॉट अ सबसेट। Y such that Y is an equilateral triangle in a plane. Y such that Y क्या है? एक equilateral triangle है in a plane. Is an equilateral triangle in a plane. Y such that Y is a rectangle in the same plane. अब same plane में rectangle ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। No, this is not a subset, right? Then next, Y such that Y is an equilateral triangle in a plane. Y such that Y is a triangle in a plane. Okay. All types of triangle नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट क्या बोल रहा है? कुछ में ट्रायंगल होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए ये आपको डिफाइन नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? ये सबसेट होगा कि नहीं होगा? See here, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दूसरा बोल रहा है कि इसमें ट्रायंगल ही ट्रायंगल है, तो ये सबसेट होना चाहिए, है ना। सेकंड बोला y such that y is an odd natural number x is an integer, तो odd natural number भी इंटीजर से होता है, तो ये उसका सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5।
see here. Next we will do question number 2. So question number 2 is स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको क्या बताना है, ट्रू है कि फॉल्स, राइट। फर्स्ट बी और सी जो है, बी एंड सी, बी सी सी डी ई, is a vowel in the English alphabet. B, C, D. The last one is not last. B जो है वो क्या लिखा है, अच्छा belongs to, फिफ्थ में B is a subset of, misprint है, A, B, C, D. Last one is C subset of Y such that Y is an even natural number, less than 6. चलिए, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। बी और सी इसमें मैच हो रहा है, बी नहीं है एंड सी है और डी नहीं है, ये करेक्ट है, ट्रू है। परफेक्ट नहीं हुआ ना। ए ई आई एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई, दिस इज ट्रू। 1 2 3, so 3 is not in this, 1 2 तो है, ये false हो गया। C इसमें है, yes true। B इसमें है, true। Y such that Y is an even natural number less than 6, even natural number less than 6 क्या हो जाएगा, 2 and 4 is a subset of Y such that Y is a natural number which can डिवाइड 36। सो 36 को जो डिवाइड कर सकता है 1 2 3 4 एंड 6। यस दिस इज ट्रू, राइट। 36 को 36 को डिवाइड कर सकता है। और इसके बहुत सारे हो जाएंगे, हम तो नेचुरल नंबर लेके 6 हो जाएगा ना, फिर आपका क्या होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 36 होगा, 18 भी होगा, 36। ये सारे एलिमेंट देख रहा था, 2 4 आ रहा है कि नहीं, 2 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Next question number 4।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सी है, लेट x is equal to 11 12 and 13 14. According to the given set, which of the given statement are false and why? और हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना, राइट, एंड वाई, उसके लिए आपको रीजन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 14 is the subset of x. 13 14 belongs to x, फिर हो जाएगा 13 and 14 is a subset of x, then हो जाएगा 11 belongs to x, 11 is a subset of x। बिलोंग्स टू के बारे में पहले क्लास में ही बताया था, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सीखा था बिलोंग्स टू क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। सिक्स्थ वन इज 11 12 and 15। Seventh one is 11 12 15 belongs to x। Eighth one is 11 12 13 is a subset of x, 5 belongs to x। Tenth one is 5 is a subset of x, 5 is a subset of x, okay। So now we will solve this one, right? First try। Okay, तो see here, यहाँ पे two चीजें लर्न करना है, two things। First one is subset and second one is belongs to। इसका ये क्या चीज का सिंबल होता है, सबसेट का, इसको क्या रेट करते हैं, belongs to, right? तो जैसे मान लो A B C कोई A1 एक सेट है एंड A2 एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है B एंड C, तो हम क्या बोलेंगे, A2 जो है वो सबसेट है A1 का, राइट। और आई कैन से दैट B एंड C ये जो पूरा सेट होगा, सेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे मिडिल ब्रैकेट में, वो सबसेट होगा A1 का। बट अगर केवल स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में बताना हो B, तो B बिलोंग्स टू A2 और B बिलोंग्स टू A1, राइट। तो एलिमेंट को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन जो भी हम सबसेट बताएंगे वो किस चीज के रिस्पेक्ट में बताएंगे, सेट के रिस्पेक्ट, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 13 14, यहाँ पे 13 14 क्या है, एक एलिमेंट की तरह, तो क्या वो सबसेट हो सकता है, कभी एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट से भी अगर आप एक सेट बनाते हैं, जैसे इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 5 A B C A B C, ठीक है। तो ये सब सारे सबसेट होंगे क्योंकि ये भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 होता है इसलिए उसको नहीं डालते मिडिल ब्रैकेट। तो ये सही लिखा हुआ नहीं, ये फॉल्स है, क्या है, 13 14 बिलोंग्स टू x, डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि 13 14 एलिमेंट है, ये बिलोंग्स कर रहा है, तो दिस इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट बोला है 13 14, यस ये एलिमेंट है, उसको ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि ये सबसेट है, बिल्कुल है, दिस इज ट्रू। 11 बिलोंग्स टू x, यस ट्रू। 11 इज अ सबसेट ऑफ x, अब आपको पता चल गया होगा कि फॉल्स लिखा है। 11 को पहले सेट तो बना, 11 12 एंड 15
का जो सेट है वो x का सबसेट है, बिल्कुल ट्रू है ये। 11 12 15 बिलोंग्स टू x, फॉल्स है, ये बिलोंग्स टू कर रहा है लेकिन ऐसे सेट के फॉर्म में नहीं, ऐसे बिलोंग कर रहा है। 11 बिलोंग्स टू x, 12 बिलोंग्स टू 15 एंड 15 बिलोंग्स टू x। दिस वन will be x, right? 11 12 and 13 is a subset of x। नहीं, ये दोनों एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है, आप इसको तोड़ कैसे सकते हो, तो ये यहाँ के एलिमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू x, 5 इसमें कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। 5 इज अ सबसेट ऑफ x, यस दिस वन इज ट्रू, बट 5 को ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं होता, तो इसीलिए ये भी फॉल्स। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? यस, क्वेश्चन नंबर राइट ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, राइट ऑल द सबसेट, राइट ऑल द सबसेट, राइट ऑल द सबसेट। See question number 4. First note question number 3. Okay. Not question number 3. Right. Write all the subsets of the given sets. First one is B, second one is BC, third one is क्या बोला? राइट ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। वन का आंसर क्या होगा? कैसे करेंगे वन का सॉल्यूशन? बी कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होनी चाहिए? 2 to the power 1 is 2, और वो क्या होगा? और वो सबसेट होगा क्या? फर्स्ट वन इज 5 एंड सेकंड वन इज, सेकंड केस में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power 2 is 4, और सबसेट होंगे क्या? 5 B C B C। थर्ड क्या हो गया? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 to the power 3 will be 8। सबसेट क्या होंगे इसके? फर्स्ट क्या हो जाएगा? 5, सेकंड क्या हो जाएगा? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, देन 2 3 3 4 2 4, देन 1 2 3, राइट? नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट, तो 5 को एलिमेंट काउंट नहीं करते, यानी कि 2 to the power 0 1, तो इसलिए इसके सबसेट क्या होंगे? एक ही होगा 5, राइट? कंफ्यूजन भी है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? 5 इज नॉट एन एलिमेंट, 2 to the power 0 1, नोट कीजिए इसे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Question number 5. How many elements
इज इक्वल टू 5। अगर x 5 है तो dx क्या होगा ये आपको निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके सो सी हियर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, यहाँ पे क्या है? पावर सेट ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 to the पावर एलिमेंट इन x। x में कितने एलिमेंट है? x इज इक्वल टू 5। 5 इज नॉट एन एलिमेंट, तो इसलिए 0। 2 to the power 0 का आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द given in the form of intervals y such that y belongs to R, y such that y belongs to R minus 5, y this y such that y belongs to R minus 13, y is greater than minus 13 and less than minus 11. Third one is y such that y belongs to R 1 and y is greater than equal to 1 and less than 8. Fourth one is y such that y belongs to R, y is greater than equal to 4 and less than equal to 5. इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है? इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। इसका इंटरवल क्या होना चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे? सी दिस वी कैन राइट दैट y इज इक्वल टू और y बिलोंग्स टू, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। y बिलोंग्स टू -5 and 7। टू हमारा एक्सट्रीम लिमिट है ना, -5 and 7। तो यहाँ पे क्या है? ओपन, और ये क्या है? क्लोज। ठीक है, तो ओपन फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड क्लोज टू राइट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? y बिलोंग्स टू -13 एंड -11। दोनों तरफ ओपन इंटरवल इक्वल नहीं दिया। थर्ड वन को आप कैसे लिख सकते हैं? y belongs to 1 and 8, this is open and this will be closed, right? और यहाँ पे इक्वल साइन भी आ रहा है। लास्ट वन वो देखिए, y belongs 4 and 5 है। अब दोनों जगह इक्वल साइन आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या? तो ये उसका इंटरवल फॉर्म हुआ। समझ आ गया? आप इसे इक्वल करके भी लिख सकते थे, y इक्वल टू -5 to 7। कोई सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, write the given intervals in the form of sheet builder -4, 1, 7 and 13, open and close, and then -4
एंड 6 ओपन, राइट। इसे हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी ये कौन सा सेट बिल्डर में दिया हुआ था, हमने किसको लिख दिया, अच्छे से मतलब लिख दिया ना इंटरवल फॉर्म में। अब इंटरवल फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में लिखना है हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो सी हाउ वी विल राइट, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, मान लो x है, सो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर ही है और कंडीशंस क्या है, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1, दोनों तरफ ओपन इंटरवल। सेकेंड का देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की जो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड लेस देन इक्वल टू 30, दोनों तरफ से होगा ना, ये क्लोज इंटरवल है। और ऐसा नहीं आप x कुछ भी ले सकते हो, x की जरूरत नहीं, आप a भी ले सकते हो, a सच दैट a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पे लिखना a का इंटरवल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 लेस देन इक्वल टू 30। फोर्थ वन, a such that a belongs to real number, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड लेस देन 6। यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट आएगा, राइट, क्योंकि ये आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये सभी जो है वो कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म था, इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म से आपने सेट बिल्डर फॉर्म में देखा, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे ये किस फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपने यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा है इसे, इंटरवल फॉर्म में, राइट। ओके, तो सी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Question number 8 says, what universal sets would you propose for the given sets? First one is the set of right triangles the set of isosceles triangle. Then question number 9 में लिख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक ही साथ कंप्लीट कर लेंगे। सी हियर क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ x is equal to 1 3 and 5 and y is equal to 2 4 and 6 and z is equal to 0 2 4 6 and 8, which of the given sets can be considered as the universal set, as the universal set for the
given sets x, y and z, right? x, y and z. First question क्या है? First question is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Second question is 5. Third one is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And then fourth one is fourth one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. राइट, इसे आप ट्राई करो, एक बार ट्राई कीजिए. What universal set or sets would you propose for the given sets? The set of right angle triangle. तो इसका universal set बनाना है. Universal set मतलब जैसे ये आपका एक बॉक्स है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट सेट्स हैं. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर सभी आ जाए. कोई भी सेट आप डिफाइन करो तो हमारे पास कोई सेट है राइट ट्रायंगल का, तो हम लोग क्या उसको यूनिवर्सल सेट क्या बोल सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. द सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है ना. इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. इसका क्या होगा? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. सेम रख सकते हैं यूनिवर्सल सेट, और कुछ डिफरेंट भी अगर आप सोच पाओ तो लिख दो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 बोल रहा है x, y, z is given. x, y and z is given. Which of the given set can be considered as universal set for the given set x, y, z? तो पहले बेटा इसमें देखो क्या सभी एलिमेंट्स मिल रहे हैं? 1, 3 and 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Yes. तो फर्स्ट जो है x का यूनिवर्सल सेट हो. अच्छा x, y, z तीनों के लिए बोल रहे हैं. अच्छा x, y and z. चलो y का एलिमेंट चेक करो. x is a subset of 1. Then y is a subset of 2, 4, 6. 2, 4, 6. Yes, subset of 1. z 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है. ओके, नॉट अ सबसेट ऑफ 1. तो ये क्या होगा? 1 यूनिवर्सल सेट नहीं होगा. 5 यूनिवर्सल सेट होगा. तो हो सकता है क्योंकि 5 सबका यूनिवर्सल सेट होगा, या तो है या कुछ नहीं. चलो 5 के बाद में आते हैं, पहले थर्ड वन देखते हैं. थर्ड क्या बोल रहे हैं? 1, 3, 5. 1, 3, 5 है. 2, 4, 6. 2, 4, 6 है. 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. यस. सो 3, 1 क्या है हमारा? यूनिवर्सल सेट है. फोर्थ वन में ये 0 नहीं है ना यहाँ पे, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा. वो आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा. यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा? कि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए. राइट. अब मुद्दा है 5. 5 क्या होगा? 5 यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं, ये बताइए आप लोग. वेदर 5 इज एन यूनिवर्सल सेट और नॉट. तो 5 में मैच हो रहे हैं. 5 का मतलब क्या होता है? खाली ना. तो x से मैच हो रहे हैं. देखो नहीं ना, ना ही y से ना ही z से. 5 भी नहीं होगा. तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ओनली थर्ड वन. यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है. अब हम लोग 1.4 करने के लिए थ्योरी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए उसके बारे में जानेंगे. राइट. तो देखिए 1.3 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट 1.4 आगे का एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग थ्योरी जानेंगे. होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. अगर होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं. राइट. अब क्या जानना है वो देखिए. हम लोग
जानेंगे उसे वेन डायग्राम के थ्रू जानेंगे। क्या बोलते हैं उसे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो दो चीज होता है। फर्स्ट यूनियन। यूनियन क्या होता है? जैसे सपोज मान लो ए एक सेट है, अभी मैं समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा प्रॉब्लम सोल्व करके। ए बी सी एंड बी एक सेट है जिसमें है बी सी डी ई। तो ए यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन बी पता है क्या होगा? पहले दोनों में जो मैच है उसे लिख, पहले दोनों में जो मैच है वो लिख दो। क्या क्या कॉमन है? कॉमन क्या क्या? BC एंड BC आप लिख दो। फिर बाकी सब जो बच जाए उसे भी लिख दो, A D E। तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा? तो सी, मान लो ये आपके पास क्या है, अभी बताया ना, यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट U। और ये आपका सेट A है जिसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? A भी है, B भी है और C। और दूसरा एक सेट है, ये A है और ये E। तो ये सेट A है और ये सेट B। इसमें कौन से एलिमेंट है? B C D एंड B C D। तो अभी आपको समझ में आया यूनियन में क्या हो रहा है? A D E भी लिख रहे हैं और B C भी लिख रहे हैं। तो सिमिलरली जो कॉमन पोर्शन होगा, तो ये वाला पार्ट बचा हमारा, वो क्या होगा? तो ये हो जाता है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? बी कॉमन। यहाँ से समझ आया? इसका क्या रहेगा? ये ए इंटरसेक्शन होगा। ए यूनियन बी क्या होगा? ये टोटल पार्ट होगा यूनियन। ये इंटरसेक्शन क्या होगा? ये होगा। अच्छा, अगर ओनली ए पूछा जाए, यहाँ से पूछा जाए ओनली ए नॉट बी, तो क्या होगा इसमें एलिमेंट? ओनली ए आएगा। बोलो आया? यही आएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए ओनली बी नॉट ए, तो क्या हो जाएगा? डी एंड डी आएगा। इसे ध्यान से समझना है कि यही काम आएगा बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, है ना? अच्छे प्रॉब्लम जब आएंगे तो यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, इसके बाद हम लोग जानेंगे एक और डायग्राम बनाते हैं, सेम डायग्राम को सीखिए। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज A एंड दिस इज B। A में क्या एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? A एंड B कौन सा सेट है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने कि अगर A इंटरसेक्शन B फाई आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। तो ये कंडीशन याद रहेगा। A इंटरसेक्शन B अगर फाई आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। अच्छा, यूनियन से एक और चीज जानते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ A यूनियन B निकालना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे A यूनियन B में, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले A को ऐड करो, नंबर ऑफ A के एलिमेंट्स क्या होगा? A B C 3। अच्छा, B वाला भी ऐड करो, B C D 3 + 4 कितना हो गया? 3 + 4 7। अच्छा, अब लेकिन BC तो आपने दो बार काउंट कर लिया, तो उसको क्या करोगे? माइनस करोगे, जो कि क्या होता है? A इंटरसेक्शन। तो -2। आपके रिजल्ट्स क्या आ गए? 7 - 2 5। देखो इसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ A यूनियन B क्या है? इसमें 5 है कि नहीं? यहाँ पे Na क्या है? B है। NB क्या है? 4 है। और N ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है? 2 है। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें अब ये आता है, नेक्स्ट 2 पॉइंट होगा, वो ध्यान से समझिए।
कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये बाकी का पार्ट, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिवर्सल में। तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, यहाँ से यूनिवर्सल माइनस ए। तो अब कहिएगा सर इसे निकालेंगे कैसे, माइनस ऑपरेशन भी तो आना चाहिए ना हमें, वो कैसे निकालेंगे उसको मैं अभी समझा रहा हूँ। ये ए है और मान लो ये बी है, आपसे बोला गया है इसमें एलिमेंट था ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा। अब बोला गया ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी क्या होगा। तो ये पूरा ए था और माइनस बी आपने पूरा निकाल दिया, तो आपके पास क्या बच गया, वही ए माइनस बी बचा, जो कि क्या आया आपका ए कॉमा बी आया, यानी कि a माइनस बी का मतलब a का एलिमेंट जो भी b में है उसको हटा दो। तो a का कौन सा एलिमेंट b में था, c था, उसे हमने हटा दिया। सिमिलरली अगर बोला जाता b माइनस a निकालो तो क्या होता, b का जो भी एलिमेंट्स a में होता हम हटा देते, हमारे पास क्या बचता d e f h। इसमें कोई डाउट नहीं। a माइनस b को ही हम लोग बोलते हैं ओनली a, b माइनस ई को ही बोलते हैं ओनली बी। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे, पूछे जाएंगे कि आपको ये केवल चाहिए, तो आप वेन डायग्राम से करोगे तो काफी इजीली बता पाओगे कि चलो आपको ओनली बी चाहिए, तो सबसे पहले ओनली बी कैसे निकालो। अच्छा एन ऑफ, आपको अगर ओनली ए निकालना है तो क्या कर सकते हैं, ओनली ए निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, एन ऑफ ए टोटल कितना है माइनस कौन सा चीज करोगे, n ऑफ a इंटरसेक्शन, बोलो हाँ या ना। लेकिन वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली b निकालना है तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन। अब ये भी फॉर्मूला दिया रहता है, लेकिन अगर आप इसे समझ के रखोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो याद करते रहना हमेशा, है ना। ये समझ आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछिए, समझ में आ गया तो बोलिए आगे बढ़। ये तो रहा ओनली बी का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अगर 3 सेट्स होगा एक साथ, 3 सेट्स कंबाइन होंगे जी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए बी सी, अब आपको अगर निकालना हो जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कैसे निकालोगे, देखो जरा। सबसे पहले तो बड़े वाले को ऐड करोगे, na आपके पास है, देन क्या करोगे b को ऐड करोगे, देन क्या करोगे c को ऐड करोगे। अब जरा देखो सभी को ऐड करते हो, कुछ चीजें हमेशा कॉमन रह गई, ये रह गया ना। तो फर्स्ट a और b को सेट को देखोगे तो क्या कॉमन रह गया, ये a इंटरसेक्शन b जो था 2 बार काउंट हो चुका है, 2 टाइम्स, तो हम 1 टाइम्स क्या करेंगे इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, a इंटरसेक्शन। जब BC को देखा तो इसमें भी 2 टाइम्स काउंट हुआ, उसको भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और जब CA को देखा तो वो भी 2 टाइम्स काउंट हो चुका था, उसे भी हम निकाल दिए। अब जब आप ये तीनों माइनस किए तो उसमें पता चला कि केवल ये वाला जो पोर्शन था ना, जो तीनों का इंटरसेक्शन था, वो कितनी बार आप लोग सब्सट्रैक्ट कर दिए जरा बताना। एक बार इसके साथ आप माइनस हो गया, एक बार इसके साथ माइनस हो गया, एक बार इसके साथ माइनस हो गया, जो कि माइनस नहीं होना चाहिए, है ना, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हमने ऐड कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला होता है, राइट। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इंटरसेक्शन माइनस कर लेंगे, इसमें 3 वाला जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसका समेशन लिया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे बोला जाए कि ओनली ए निकाल के बताओ, ओनली ए, नंबर ऑफ ओनली ए, तो क्या करो, नंबर ऑफ ओनली ए क्या करो, सबसे पहले आपके पास na है, उसमें से ये क्या माइनस करोगे आप जरा बताओ, n ऑफ a इंटरसेक्शन c, देन क्या माइनस करोगे, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और क्या ऐड कर दोगे, क्योंकि 2 टाइम्स बाहर होता है, एक तो वो बचा रह गया ना, तो n ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को प्लस कर दोगे, ए प्लस करोगे ना तो आपका आ जाएगा, क्योंकि अच्छा आपको ओनली ए चाहिए ना, तो ओनली ए चाहिए तो ये बाहर हो गया और ये बाहर, हाँ ये ज़्यादा 2 टाइम्स बाहर हो चुका है, एक बार ऐड करना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही एन ऑफ एन ओनली बी चाहिए तो भी निकाल दो, एन ओनली बी चाहिए तो क्या हो जाएगा, एन बी तो होगा, उसमें से क्या माइनस करोगे, बी इंटरसेक्शन सी, फिर क्या माइनस करोगे, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी प्लस सभी का इंटरसेक्शन ऐड। अगर ओनली सी पूछेगा तो एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, एन ऑफ सी ए एंड सी एंड बी, तो बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर वेन डायग्राम आपके ध्यान में रहेगा तो हम सभी चीजों को इजीली सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला याद करने जाएंगे तो कंफ्यूजिंग होगा और इससे आपके क्वेश्चन को गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इस पे एक्सरसाइज करते हैं, दैट विल बी 1.4। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय द